Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. Class 7th English. Today we are going to do the chapter number 15. The name of the chapter is The Tempest. Okay, student, this is a very interesting story. You all will enjoy reading this story. One day, Prospero, a magician, tells his daughter Miranda the long story of their past, a story he had often started but narrating before, but never completed. The story is about how they had arrived 12 years ago on the island where they now live. Read this adapted version, often extract from Shakespeare's play The Tempest. So this story is written by William Shakespeare. He was born in 1564 and he died in 1660. He was an English poet and playwright, born and raised in Stratford upon Avon, England. He is regarded as the greatest writer in the English language and often called the Bard of Avon. His plays have been translated into every major language and are performed more than those of any other playwright. Some of his famous plays are Hamlet, King Lear, and Macbeth. So, students, as we know, everybody knows William Shakespeare. He is a very famous writer, author. Okay, so here we go to start the story. Far away, it is a story of a magician named Prospero. Okay, and he has a daughter named Miranda, and Prospero always used to tell some story to Miranda, but often he started narrating the story, but he never completed it before, since the day we are talking about. Okay, so far away on a lonely island, there lived a wise old man and her daughter. The man was Prospero, a magician. The daughter was Miranda, a lovely young lady of 16. So ये कहानी है प्रॉस्पेरो के बारे में, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और उनकी डॉटर के बारे में है. द मैन वॉज प्रॉस्पेरो, जो मैन है उनका नाम है प्रॉस्पेरो, द मैजिशियन है वो, और उनकी जो डॉटर है उनका नाम है मिरांडा, और वो लवली यंग लेडी हैं, एंड शी इज़ ऑल ऑफ 16 years. Prospero knew so much of the art of magic that he was able to command the spirits of the island to obey him. और प्रॉस्पेरो मैजिकल आर्ट में इतने निपुण थे कि वो जो स्पिरिट्स थी आइलैंड पे उनको भी अपने कंट्रोल में, स्पिरिट्स मीन आत्माएं, तो जो आत्माएं होती थी आइलैंड पे वो उनको भी अपने काबू में कर लेते थे. द चीफ ऑफ दीज जेंटल स्पिरिट्स वॉज एरेल, a living little creature who was not only devoted to his master but also full of mischief. Ariel was invisible to all eyes but Prospero's. Prospero entrusted his most important task to him. So, जो प्रॉस्पेरो थे वो जेंटल वो स्पिरिट्स को अपने काबू में कर लेते थे, और उन स्पिरिट्स का जो चीफ था वो कौन था? एरिल था. तो एरिल जो था वो क्या था? बहुत लवली लिटिल क्रिएचर था, और वो और वो बहुत डिवोटेड था अपने मास्टर को, लेकिन वो बहुत ही मिस्चीवियस था. और एरिल किसी को दिखता नहीं था सिवाय प्रॉस्पेरो के. क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि वो एक स्पिरिट था.
Prospero entrusted his most important task to him. और Prospero ने उसको made him responsible for. Entrusted, that means to make him responsible. So Prospero ने उसे एक बहुत important काम दिया था. One day Prospero raised a fearful storm by means of his magic power. He took his daughter to beach to watch a ship struggling against the wind and wave. The ship seemed like to sink at any moment and those on board seemed likely to drown. अब क्या होता है, एक दिन प्रॉस्पेरो क्या होते हैं, जो मीन्स जो बीच फियरफुल जो समुद्र होता है उस समुद्र में एक बहुत ही भयानक सा स्टॉर्म ला देते हैं अपने मैजिकल पावर्स से, है ना. और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी डॉटर को बीच पे बुलाते हैं तो वो शिप देखने के लिए जो कि वाटर में उस मैजिक से क्रिएट किए गए स्टॉर्म के बीच स्ट्रगल कर रही है और अगेंस्ट विंड्स एंड वेव्स, हवाओं और लहरों के बीच में स्ट्रगल कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जो शिप है वो डूब जाएगी और उसमें बैठे हुए जो नाविक हैं वो सारे भी डूब जाएंगे. Here that those on the ships were human beings as she and her father were. मिरिंडा was filled with pity. अब जब उसे पता चला कि वो शिप में बैठे हुए जो लोग हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, किसकी तरह, मिरिंडा और प्रॉस्पेरो की तरह, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है, दया आती है उसे. और वो क्योंकि वो मिरिंडा और उसके फादर दोनों ही बहुत दयालु व्यक्ति थे. Oh my dear father, she cried, if you have raised this dreadful storm, have pity on the people aboard the ship. Please don't let them drown. और वो कहती हैं अपने फादर से कि अगर आपने ये ड्रेडफुल स्टॉर्म रेज किया है तो उन पे दया करिए, उन लोगों पे जो उसमें शिप में हैं, और ऐसा मत करिए, उन्हें डूबने नहीं दीजिए. Do not be anxious, my child. Her father comforted her. No one is going to be harmed. He paused and then went on. वो बोलते हैं कि तुम घबराओ नहीं मेरे बच्चे, और वो उनके फादर उनको कंफर्ट करते हैं. मिरांडा के फादर प्रॉस्पेरो जो है वो उनको कंफर्ट करते हैं कि तुम घबराओ नहीं, इसमें जो भी इस शिप में बैठा है उसको कोई भी हार्म नहीं होगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. 1 मिनट के लिए रुकते हैं और फिर वो शुरू करते हैं. मिरिंडा, द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग 12 years ago. नाउ प्रॉस्पेरो कहते हैं मिरिंडा से कि मिरांडा अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें 12 साल पहले हुई घटना की सारी जानकारी दूँ. I was the Duke of Milan and you, my only child, were a princess and my only heir. Duke, a male member from family of high social rank. तो वो क्या बोलते हैं कि वो ड्यूक थे, दैट मीन्स वो राजकुमार थे अपने प्रोविंस के और मिलान के, है ना. वो जगह का नाम क्या था, मिलान. तो वो मिलान के प्रिंस थे और किंग थे, और जो मिरिंडा थी वो उनकी इकलौती संतान थी, उनकी इकलौती वंशज थी, हायर, दैट मीन्स उत्तराधिकारी. इवन एट दैट टाइम माई चीफ इंटरेस्ट वॉज द स्टडी ऑफ मैजिक. और उस समय में भी उनका चीफ इंटरेस्ट, उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था, मैजिक में. आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम इन माई स्टडी विद माई बुक्स. और वो बोलते हैं कि उस समय भी मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट था जादू सीखना, मैजिक सीखना, और मैं ज़्यादा समय अपनी बुक्स को स्टडी करने में स्पेंड करता था. आई लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ माई ड्यूकडम टू माई यंगर ब्रदर एंटोनियो. और वो बोलते हैं कि फिर ड्यूकडम क्या है, एरिया गवर्न बाय अ ड्यूक, दैट मीन्स इसे हम राज्य कह सकते हैं, है ना. तो आई लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ माई ड्यूकडम, उन्होंने अपने राज्य का मैनेजमेंट किसके ऊपर छोड़ा, अपने यंगर ब्रदर जिसका नाम क्या था, एंटोनियो.
एंटोनियो के ऊपर छोड़ा, एंड आई ट्रस्टेड हिम बट ही टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स एंड ट्रेचरस एज यू विल सी। और फिर क्या होता है कि वो उन पे ट्रस्ट करते हैं, अपने ब्रदर यंगर छोटे भाई एंटोनियो पे, और वो लेकिन उनके भाई जो है उन्हें धोखा देते हैं और धोखेबाज निकलते हैं। ही प्लॉटेड टू डू सो sorry he plotted to rob me of my dukedom, and he was able to do so with the aid of Ali the king of Naples। अब क्या होता है कि वो किंग एली जो द किंग ऑफ नेपल्स होता है उसके साथ वो एली कर लेता है, मतलब संधि कर लेता है, और प्लॉटिंग करके प्लानिंग करके जो प्रॉस्पेरो है उसको उसके ही किंगडम से भगा देता है। माई कनिंग ब्रदर पुट अस इन अ रॉटन बोट विदाउट ओर्स एंड सेल एंड पुश्ड अस आउट टू सी। और उसका बोलता है कि मेरा कनिंग ब्रदर, दैट मीन्स बहुत ही खराब व्यक्ति, कनिंग को हम कह सकते हैं घूर्त, तो बहुत ही घूर्त भाई जो है उनका छोटा भाई, उसने उन्हें सड़ी हुई सी बोट पे डाल दिया और उसमें ओर्स नहीं दिए, सेल्स नहीं दिए, और उसे सी में पुश कर दिया। ही थॉट दैट वी वुड सर्टेनली पैरिश। और वो कहते हैं कि उसने सोचा कि हम ख़त्म हो जाएंगे, पैरिश दैट मीन्स टू डाई। फॉर्चुनेटली अ काइंड ओल्ड मैन नेम्ड गोंजालो सेव्ड अस। और वो बोलते हैं फॉर्चुनेटली दैट मीन्स लकीली, एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम था गोंजालो, उन्होंने हमें बचा लिया। He had placed in the boat water, provisions, apparels and something I most praised, namely my books on magic। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोट में क्या क्या प्लेस किया था, provisions और apparel। So here we can see what are provisions, apparel, food item and clothes। Apparel means clothes, provisions that is food item। So what did he placed in the boat? The old man Gonzalo placed provisions and apples, that mean food items and clothes and magical books, the books of magic. So and something the something that he most wanted was the books on magic. Thanks to Gonzalo we were able to reach this island of ours। और वो कहते हैं कि मैं गोंजालो को धन्यवाद करता हूँ और उसका आभारी हूँ कि हम इस आइलैंड पे पहुँचे जो कि हमारा है। नाउ प्रोस्पेरो कंटिन्यूड, आई शैल टेल you why I have raised this fearful storm on the ship over there are many my enemies, my brother Antonio and the kings of Naples। अब कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये fearful storm क्यों रेज़ किया है। तो क्यों रेज़ किया है, क्योंकि उस शेप पे उनके दुश्मन हैं, और उस दुश्मनों में कौन कौन है, माई ब्रदर एंटोनियो दैट मीन्स प्रोस्पेरो के भाई एंटोनियो, और द किंग्स ऑफ नेपल के किंग्स। दे विल बी कास्ट अशोर एंड आई शैल मीट देम फेस टू फेस। वो कहते हैं कि मैं उन्हें किनारे पर लाऊंगा और उनसे फेस टू फेस मिलूंगा। दे विल बी इन माई पावर, और वो मेरे पावर के अंदर होंगे, दैट मीन्स वो मेरे एरिया में होंगे। दे विल बी एट माई मर्सी, और वो मेरी दया पे होंगे। Prospero fell silent. He touched his daughter with his magic wand and made her fall asleep। और क्या होता है, प्रोस्पेरो चुप हो जाते हैं और वो अपने मैजिकल बैंड से अपने डॉटर को छूते हैं और वो सो जाती हैं। एरियल हैड जस्ट appeared to tell his master what he had done to the passengers and crew of the ship। और एरियल जो है वो तुरंत ही वहाँ पे पहुँचता है, जैसे ही वो अपनी बेटी को सुलाते हैं जस्ट उसी टाइम पे वो वहाँ पे अपीयर होता है, अपने मास्टर को बताता है कि उसने पैसेंजर और क्रू के साथ क्या किया है जो कि शिप में थे। मिरांडा वुड हैव बीन अलार्म्ड इफ शी हैड सीन हर फादर टॉकिंग विद एन एम्प्टी एयर। और मिरांडा डर जाती अगर उसने अपने फादर को खाली हवा से बात करते हुए देखा होता। Well, my brave spirit, how have you performed your task? अब प्रोस्पेरो पूछते हैं एरियल से कि
मेरे बहादुर स्पिरिट, तुमने कैसे अपना काम किया है? प्रॉस्पेरो आस्क्ड एरियल, एरियल से पूछते हैं. एरियल गेव अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म एंड द टेरर इट कॉज्ड एंड हाउ द किंग्स सन्स फर्डिनेंड वॉज द फर्स्ट टू जंप इन टू द सी. एंड एरियल जो है वो बताते हैं, लाइवली डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उन्होंने कैसे स्टॉर्म कॉज किया एंड टेरर कॉज किया और किस तरह से वो लोग डर गए हैं. और किंग का सन फर्डिनेंड फर्स्ट पर्सन था जो कि सी में कूद गया. You have done well, my gentle spirit. Now go and bring the young prince here. My daughter must see him, Prospero. और वो कहते हैं कि ओके, तुमने बहुत अच्छा किया जेंटल स्पिरिट. अब जाओ उस यंग प्रिंस को यहाँ ले आओ, मेरी डॉटर उससे ज़रूर मिलना चाहेगी. स्माइल्ड एट सम सीक्रेट थॉट, और वो कुछ सीक्रेट थॉट पे स्माइल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, I know this story is very interesting. Nobody would like to get ended in the between, but we will do the remaining portion of the story in the next video, and you will enjoy the conclusion of the story most, I know. So thank you and keep watching the videos. Have a good day.